علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه، وقال كل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ آلاف التحية والسلام على سيد الأنام ذي القدر والعزة والرتبة والمقام، الذي معروف في السماوات بأحمد وفي الأراضين بمحمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام على آله البررة الكرام، واللعن الدائم على أعدائهم اللئام۔ أما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ برادران ایمانی، آج المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں سیرت النبی کے عنوان پر چھٹا خطبہ جمعہ ہے، اور آج ہم 62ویں پہلو سے 62ویں پوائنٹ سے شروع کر رہے ہیں۔ 62، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ یہ جو سٹنجی لوگ ہیں، یہ جو مائزر لوگ ہیں، یہ جو کنجوس مکھی چوس ہیں، یہ جو بخیل لوگ ہیں، ان کو اس سیرت کو سمجھنا چاہیے کہ حضور کو سخاوت پسند تھی، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا وکان سخیا، اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جو سخی نہیں تھا۔ ہمارے تو سخی شاہ ہے، اسم با مسمى، جی ہاں میرا بھی نک نیم سخی ہی ہے۔ تو جی ہاں، ہر مسلمان کو، ہر مومن کو جنرس سخی ہونا چاہیے، یہ سیرت النبی ہے۔ حضور اپنے گھر میں، البتہ یہ دوسری سیرت بے شک نہ اپنائیں، یہ ٹو مچ ہے، یہ صرف سننے کے لیے، پہلی اپنانے کے لیے۔ حضور اپنے گھر میں درہم و دینار چھوڑتے ہی نہیں تھے، جو کچھ بچا ہوتا باہر لا کے تقسیم کر دیتے۔ آپ یہ بے شک نہ کریں، اس کے آپ کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں، مگر سخی ہوں، خمس دیں، زکوٰۃ دیں، چیریٹی دیں، صدقہ دیں، خیرات دیں۔ یہ 62واں پہلو۔ 62nd part of Holy Prophet's lifestyle is he was most generous person on the surface of earth. In universe, starting from Adam alayhi salam, ending to day of judgment, he was most generous person. And he never left the money at his home. When the evening was coming, he was taking all money and was distributing among the poor people. 63واں پہلو، سال کے اخراجات کے علاوہ سب کچھ راہ خدا میں خرچ فرما دیتے۔ He used to save only the sustenance for his household, that's all. Whatever they needed, his wives, his family needed, beside that wealth, he used to distribute in the way of Allah. I think you shut down.
इट्स नॉट दैट। हाँ हीट तो नहीं, बंद कर दें, हीट की जरूरत नहीं है, हीट की जरूरत नहीं, ये बीमारों के लिए है। 64वां पहलू, ये हाजी साहब जरा गौर करना, मामूली ताम को भी इस्तेमाल करते वक्त एंजॉय करते, ये हुजूर का तरीका था। हमारे यहां तो मेन्यूज पूछे जाते हैं कि इस मजलिस में हलीम है, आलू गोश्त है, बकरे कितने लिए हैं, हाँ उसमें सब्जी कितनी डाली है। हुजूर मामूली, यानी दाल है, चने हैं मिसाल के तौर पर, तो हुजूर उसको महजूज होकर तनावुल फरमाते थे, एंजॉय करते थे। ये मैंने अपने बुजुर्गों में, नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे मेरे बुजुर्ग हैं, आप जानते हैं, जो जब मैं तालिब इल्म था तो मेरे वो बुजुर्ग थे, मैंने उनसे ये सीखा है। अगर उनको किसी ने घर पे बुलाया है, मरजा आजम, अव्वल तो मरजा जाता नहीं, किसी के घर नहीं जाते वो लोग, मरजा आजम घर जाते नहीं, इल्ला शज़ब नदर, हो सकता है 5 साल में एक दिन, मसला 5 साल मेरे घर पे अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाते थे जब भी मैं कहता था। तो ज़ाहिर हम तालिब इल्म थे, इतने अमीर तो नहीं थे, आज भी नहीं है, आज भी अमीर तो नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो दाल साग होता वो हम सामने रखते, तो वो बाहर जाके महीना तारीफ करते कि आगे ख्वाब हुसैन के घर गए थे, अल्लाह ने क्या उसको रिज्क दिया है, हालांकि हमने उनको भिंडी तोरी खिलाई, पूरी तारीफें करते थे। देखिए ये चीज हमें सीखनी चाहिए हुजूर से भी और अपने मराजे से भी, कि थोड़ी भी कोई खिदमत करे उसको बड़ा बनाए, इससे फिर वो एनकरेजमेंट होगी इसमें दूसरों को कार्य खैर करने की। 64th lifestyle was when he was using diet, even that simple diet, he used to enjoy it and used to praise it. खजूर है मसलन, लिखा हुआ है, ये मैंने पॉइंट में लिखा था, डेट्स, हुजूर ने डेट्स किसी ने पेश की, खजूर खिलाई, तो बाहर जाके लोगों ने पूछा कि सरकार क्या खिलाया, कहा कि मन्नो सलवा की तरह था। देखिए ये होती है बात, इस तरह एक मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। ये उम्मन आपने देखा होगा, कई लोग, मैंने बड़े बड़े अशराफ, आप भी माशाल्लाह बहुत अशराफ हैं, इसमें कोई शक नहीं, देखे हैं कि जो अहले खाना की तारीफ करते हैं, अहले खाना की वो तारीफ करते हैं कि हमारी घरवाली अच्छा खाना बनाती है, साफ सुथरी है, फला है, इससे मोहब्बत बढ़ती है इंसान के अंदर। जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उन पर नजर न रखे, बल्कि खूबियों पे नजर रखे। 65वां पहलू, ये जरा गौर से सुनिएगा, जब खादिम चक्की चला के थक जाता तो खुद हैंडल अपने हाथ में पकड़ लेते और खादिम से कहते, नौकर से कहते, गुलाम से कहते, तू आराम कर, मैं चक्की चलाता हूं। देखिए क्या बात है। ये जो लोग कामयाब हुए हैं, बड़े बड़े सेठ, अब जाहिर है कि खुतबा जुमा में इतना वक्त नहीं होता कि सबके नाम भी लिए जाए, बड़े बड़े सेठों को मैं भी मिला हूं। सबसे बड़ा सेठ पाकिस्तान का, इत्तेफाक से मैं उसके यहां चला गया तो बड़ी उसने बलाएं ली, मैंने देखा कि उसके नौकर, उसके एम्प्लॉइज खाना खा रहे हैं और वो उनके सामने से प्लेटें लेकर गार्बेज में डाल रहा। देखिए आप, कामयाब वही लोग होते हैं कि जो इंसान को इंसान समझे, जानवर न समझे। Whenever the employees of Holy Prophet used to get tired, he used to do that job by his hand. 66वां पहलू, इसे जरा आप आज से शुरू कर दें, अगर नहीं भी करते तो आज से शुरू कर दें। रात को हुजूर हमेशा बावुजू सोते थे। ये हमारा जो संडे स्कूल चल रहा है, माशाल्लाह 4 संडे स्कूल चले हैं, 5वां अब है, कमाल पे जा रहा है। आपसे मेरी दरखास्त है, जिनके बच्चे नहीं आते वो लाएं और खुद आप भी आए, ये स्कूल आपके लिए भी है, ये बच्चों के लिए नहीं है, आप तो तशरीफ लाएं, आपने देखा है कितना बेनिफिशियल है। तो हुजूर, मैं उन बच्चों को ये समझा रहा हूं कि शैतान को दूर करने के तरीके क्या है, उनमें से एक ये बताया, वुजू। वुजू को वुजू पता है क्यों कहते हैं?
ज़ौ से है, ज़ौ यानी चेहरा बंदे का ज़ौ फेशानी करने लग जाता है वुजू से। जब सोए तो वुजू से सोए, हुजूर हमेशा वुजू से सोते थे। होली प्रॉफिट नेवर स्लेप्ट विदाउट वुजू, he was always with wuzu, by wuzu, especially when he was sleeping. So please start from today. 67 लोगों की मौजूदगी में, ये खास तौर पे ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी, हम सब से कुताही हो जाती है कभी, लोगों के सामने कभी टेक लगा के ले डाउन नहीं हुए। हमारे तो लोग मैसों में भी हो जाते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, न्यू जर्सी से आते हैं, आप उनको जानते हैं। मैंने उनसे पूछा भाई आप सोते कब है? कहने लगा मजलिस में। वो यहां सोने के लिए आते हैं, वो वहां बैठते हैं जहां खलीफा साहब बैठे हैं ना, वहां बैठ के आराम से सो रहे होते हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आज का टॉपिक क्या था? आज आपने इमाम हुसैन पे पढ़ा है। हमने सारी तकरीर बीबी ज़ैनब पे की थी। तो जाहिर है कि जब सो के सुनेंगे तो हुजूर का ये तरीका आज से अडॉप्ट कर लें प्लीज, कि लोग जब बैठे हों, हाँ अगर कोई मजबूर है थोड़ी बहुत टांगे लंबी कर ले, बीमार है कोई हर्ज नहीं, मगर ये जिस तरह हम अहले पंजाब भी कहते हैं ना, अहले सराइकी भी कहते हैं, ढो लगाना, ढो ना लगाएं, ढो लगा के नहीं बैठते थे सरकार। ही नेवर ले डाउन बिफोर पब्लिक, ही वॉज सिटिंग विद रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट अदर्स एज वेल। 68 मोहताज की मदद, यह खास तवज्जो रखना, मोहताज की मदद खुद फरमाते थे। हमारे यहां क्या होता है, नौकर को बुला लिया, एम्प्लॉय को बुला लिया, असिस्टेंट को बुला लिया, छोटे को बुला लिया, ए छोटे या मांगने वाली आई है जरा ये पैसे दे देना, नहीं खुद जाके दे। एहतराम का आप यहां देखते हैं ना, कई मरतबा यहां बीवियां आती हैं, मैं इधर से उठ के जाता हूं, खास तौर पे अगर बहुत बूढ़ी हो, जवान कोई बीवी आ जाए तो फिर मैं किसी से कह देता हूं कि ये वहां दे दे, उठने की बजाय उमूमन मैं खुद जाके देता हूं, पता भी ना चले। मुझसे एक बंदे ने पूछा कि ये जो 2-4 बीबियां या 2-4 लोग बूढ़े बूढ़े आते हैं तो आप क्या आपने कोई इनका उधार देना है? मैंने कहा बिल्कुल मैंने उधार देना है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि मुझे अल्लाह अभी मौत न दे, इसलिए कि बहुत मेरे जिम्मे उधार है, मैं सारे उधार दे के चला जाऊं ताकि वहां कब्र में कोई तकलीफ ना हो। यह मैंने अपने असातिज़ा से सुना है। मुझे एक बोरी भर के, एक बोरी, इतनी बड़ी बोरी, अल्लाह जानता है कि मैंने पता नहीं कैसे उठाई थी। मेरे एक दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं, पत्नी राजी ना हो, उनका नाम नहीं लेता, हम दो ने उठाई तो हमसे नहीं उठी, अंदाजा लगाए, दो ने इतनी बड़ी बोरी भर के दी। तो किसी ने उस मेरे सामने ही पूछा कि ये सखावत हुसैन को कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि आपने नोटों की बोरी भर के दे दी? उन्होंने कहा कि ये 100 में से एक बोरी दी है, 99 का भी मैं इसका मकरूज हूं, अल्लाह करे मेरे पास आ जाए मैं 99 बोरियां पी दूं। देखिए ये राह खुदा में आप जो देते हैं, कर्ज उतारते हैं, एहसान कोई नहीं करते, आप अपनी कब्र ठंडी करते हैं। तो हुजूर द होली प्रॉफिट यूज्ड टू गिव चैरिटी by his own hands. He was not appointing someone else. He never felt disrespect if he himself was serving the poor people. Make this habit. 69 खाना, ये तो खैर मैं भी नहीं करता हूं, इंसान को अपनी खामी बता देनी चाहिए, मुझसे हो नहीं सका, कोशिश की थी। खाना हुजूर अपनी उंगलियों से खाते थे। हम तो जाहिर है कि जो मार्केट की उंगलियां हैं, फोर्क या चम्मच, फोर्क से तो मुझे आज तक आया ही नहीं तरीका खाने का, या तकरीबन मैं फोर्क से जब खाता हूं तो घर जाके फिर खाना खाता हूं, भूखा ही रह जाता हूं। तो चमचों से हम तो खैर खाते हैं, इसीलिए हमारे देखिए, इसीलिए चमचे हमें तंग करते हैं। अगर हम भी उंगलियों से खाते होते तो हमें ये चमचे तंग न करते। जी हाँ, क्योंकि हुजूर की सीरत पे अमल नहीं कर रहे, जो गलती इंसान को माननी चाहिए। ये मुझसे नहीं हो सका, मैं कोशिश करता हूं मगर नहीं हो सका। चलिए अल्लाह माफ करेगा, हुजूर भी माफ फरमाएंगे। He used to eat food by his fingers. He never used spoon in his life. 70वां पहलू, आप कभी पुरखोरी नहीं करते थे, ओवर ईटिंग। He never done over eating, कि बर्ब आते रहे, जैसे हमारा नहीं होता, जैसे ही खाना खाया बस डिकार शुरू, बर्बिंग शुरू, अस्तगफिरुल्लाह,
हौसले से खाएं ना, हौसले से। ये इनके खान साहब हैं, इनके कज़न हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, डॉक्टर हैं। आप यकीन करें, मैंने उसकी अच्छी सिफत ये देखी, मेरा बचपन का दोस्त भी है, भाई है मेरा, कभी उसको बर्ब नहीं आए। बचपन में हम इकट्ठे बैठते थे, क्योंकि हमेशा वो सराइकी में कहते हैं झलीज के, वो झलीज के खाता था आराम से। यानी हमेशा आप जब खाएं तो थोड़ी सी भूख बाकी रखें, बर्ब लेकर जो है ना, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। 71वां पहलू सरकार का हदिया कबूल फरमाते। ही यूज टू एक्सेप्ट गिफ्ट, ही यूज टू एक्सेप्ट गिफ्ट वेदर दैट वाज अ माइनर थिंग। किसी ने सिप ऑफ मिल्क, एक घूंट पानी का दे दिया, ही नेवर रिजेक्टेड। किसी ने पानी का घूंट दे दिया, डेट्स दे दी, ही नेवर रिजेक्टेड समवन्स गिफ्ट्स। अल हदीयतो, आज हदीस सुन लीजिए, अल हदीयतो तजीदुल महब्बत। बहुत ज्यादा भी कोई गुस्से में हो ना, एक हमारे बुजुर्ग थे, उस्ताद तो नहीं थे, बुजुर्ग थे, मैं बना हुआ था मॉनिटर समझ लें या इंचार्ज एक मदरसे का, वो वहाँ बाबा का जो मुल्क है वहाँ पर मैं मॉनिटर था। अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं ज़रा नरम तबीयत का इंसान हूँ, आपको पता ही है मेरी तबीयत का। तो मैं जो इम्तिहान में पास नहीं भी हुआ उसको भी मैंने दाखिला दे दिया। मैंने कहा बाद में मेहनत करा देंगे, कोई बात नहीं। तो एक दफ़ा मेरे उस्ताद, मेरे बुजुर्ग नाराज़ हो गए मेरे ऊपर। तो मुझे किसी ने कहा कि बड़े तेरे ऊपर गुस्से में है कि हर कस न कस को ये देता जा रहा है कमरा। तो मैंने कहा फिक्र न करें, मैं राज़ी कर लूँगा। मैं जब गया तो बड़े खुश थे। तो किसी ने पूछा क्या किया, मैंने कहा हुजूर की हदीस पे अमल किया, गिफ्ट लेकर गया हूँ। हुजूर ने फरमाया था हदिया मोहब्बत में इजाफा कर देता, गिफ्ट एड्स इन लव। इसके बाद जनाब 72वां पहलू, आप सदका नहीं खाते थे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी फख्र है इस बात पर, मैं ये 65वें साल में दाखिल हो गया हूं, 64 साल। इनमें कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि 50 सालों का तो मुझे याद है। 50 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने न ज़कात खाई है न मैंने सदका खाया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सदका नहीं खाते थे, यानी जो सदका मनी है वो फुकरा का माल है। और हुजूर कैसे खाएंगे, या सादात कैसे खाएंगे, या अहले बैत। अब सादात बेचारों को हमने महरूम कर दिया कि सदका इनको नहीं देना, इसलिए कि ये पाक हैं, सैयद हैं, और खुम्स इनको नहीं देना क्योंकि हमारा माल नापाक है। तो सादात फिर कहां जाएंगे, इनका हक तो देना चाहिए ना। अच्छा, सदका आपने, ही नेवर एट सदका एंड नेवर सर्व्ड सदका फॉर हिज हाउस होल्ड। अहले बैत पे भी सदका हराम है। 73वां पहलू, लोगों को टिकटिकी बांध के नहीं देखते थे, जैसे घूर के नहीं देखते। कोई बंदा आ जाए, आपने देखा होगा यहां पर एक बंदा भाग गया जुमे से, उसने कहा जी फला अंकल जो है वो जैसे ही मैं जाता हूं वो अपनी आंखें मेरी आंखों से हटाते ही नहीं है, वो भाग ही गया बेचारा। तो मैं अंकल से भी दरखास्त करूंगा कि आप मेहरबानी करें, एक दफा देख लें, फिर आंखें नीची कर लें बेचारे, आपके भतीजे इस तरह भाग न जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। टिकटकी बांध कर किसी को नहीं देखते थे। ही नेवर मेड पीपल अशेम्ड बिफोर हिम। अक्सर भूखे रहते थे, यानी कम खाते थे। क्वाइट ऑफ्टन ही वॉज हंग्री फास्टिंग। और जो कुछ सामने आता, 74-75, जो कुछ सामने आता वो तनावुल फरमा लेते थे। जो कुछ भी सामने आया तनावुल कर लिया। कभी नखरा, नाज, शर्रुल इख्वान मन तुकुल्ले फला। अल्लाह अकबर, सबसे बुरा भाई तुम्हारा वो है जिसके लिए तुम्हें तकल्लुफ करना पड़े कि साहब बहादुर आ रहे हैं घर में, आज तो मार्शल लॉ लगने वाला है। हाँ, सिंपल जिंदगी गुजारे। सिंपली सिटी वाज हिज लाइफ स्टाइल। किसी चीज को कभी रद्द नहीं किया। ही नेवर रिजेक्टेड एनीथिंग। और हमेशा सफेद लिबास जेब तन फरमाते, सर पर इमामा बांधते थे। क्वाइट ऑफ्टन ही यूज्ड टू वेयर वाइट ड्रेस। 78वां पहलू, अलैकुम सलाम, कि जुमा के दिन अच्छा लिबास पहनते और पुराना लिबास फकीरों को दे देते जुमा के दिन। ही ऑलवेज यूज हिज फ्रेश ड्रेस एंड ही यूज टू सर्व पुअर्स हिज ओल्ड ड्रेस। और दाएं हाथ में अंगूठी पहनते थे,
वो चांदी की होती थी, सोने की नहीं. ही यूज्ड टू वेयर in right hand finger of right hand, alaikum salam, the ring of silver, not gold. 79 नंबर खुशबू लगाते थे. always used to take perfume, इत्र I should not say perfume. बदबू से सरकार को बड़ी नफरत थी. ये आप मेरी नसीहत याद कर लीजिए. अगर आपके पास से बदबू आ रही है तो आप समझ लें कि अभी इंसानियत आपने नहीं सीखी है. आपसे मुराद ये आप नहीं है, खुदा ना खास्ता, यानी वो जो यू होता है, वो सेकंड पर्सन जो होता है किसी के. जी हाँ, हर वुजू के साथ सरकार मिसवाक करते. ऑलवेज यूज्ड इत्र और परफ्यूम. बैड स्मेल शुड नॉट कम फ्रॉम यू. ही यूज्ड टू डू वुजू, he used to do brush, मिसवाक with each and every वुदू. हम तो समझते हैं कि एक दफा 24 घंटे में काफी है. वो फ्लास करना, कल परसों की बात है, एक साहब ने पूछा जी डॉक्टर साहब वो फ्लास कैसे करते. मैंने कहा शाबाश, तुझे तो मेरे ख्याल में सफाई की शील्ड देनी चाहिए कि तुझे आज तक फ्लास करने का नहीं पता चला. 81 अपनी सवारी पे खुद बैठते, कभी दूसरे को भी पीछे बिठा लेते, कोई शर्म महसूस नहीं करते. ही यूज्ड टू गिव राइट टू अदर्स एज वेल. और 82वां, जो सवारी मिलती उस पे बैठ जाते. कभी नहीं कहा तेरी गाड़ी फटीचर है, जैसे हम बेइज्जती कर देते हैं अपने रिश्तेदारों की. जैसे वट एवर राइट ही यूज्ड टू गेट, he used to sit on that, and he was not behind shortcomings of belongings of people. He always used to praise people whether they were needy or rich. अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे हम इन पहलुओं पे जो 82 पहलू आज बयान कर दिए सीरत नबी के, अल्लाह हमें तौफीक दे हम अमल पैरा हो सके. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन. अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु तुबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा. बिरादरानी ईमानी, दूसरा खुतबा 2 इश्यूज के बारे में होता है. एक तो तौबा की दावत है. मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझसे और आपसे जुमा की नमाज को कबूल फरमाए, हमें खुदामुल कुरान में करार दे, हमें गुलामान अहले बैत में करार दे, हम सब के माँ बाप के गुनाहों को भी अल्लाह माफ़ फरमाए, हमारी लग़ज़िशों से दरगुजर फरमाए, हम सब के लिए मग़फ़रत की चादर ओढ़ा दे, हम सब का खात्मा अलल खैर फरमाए, हम सब के मरहूमीन की मग़फ़रत हो. जो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग है, अल्लाह इसका खात्मा फरमाए और मज़लूमों की नुसरत फरमाए, ज़ालिमों को अल्लाह सज़ा दे, इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील हो. 2 इश्यूज़ होते हैं इस खुतबे में. पहला इश्यू तौबा की दावत. अपने आप को ऊसीकुम व नफ्सी, मौला अली फरमाते थे, मैं तुम्हें भी नसीहत करता हूं और खुद को भी नसीहत करता हूं. तकवा की, मग़फ़िरत की, तौबा की. तौबा दरअसल पलटना है, रुजू. तौबा कहते हैं रुजू को. आबा ज़ैदुन, जब जैद घर आ गया, इसे कहते हैं ताबा ज़ैदुन. ताबा यानी वापस आना. बंदा गुलामी की टेरिटरी से निकल गया था, अगर वो अल्लाह की अब्दियत की टेरिटरी में वापस आ जाए तो उसकी तौबा कबूल हो गई. अब एक बात जो इंपॉर्टेंट आज अर्ज करनी है वो ये है कि हमारी जिंदगी में खास तौर पे जो अधेड़ उम्र के लोग हैं, इनमें
कभी घुटने जवाब दे गए, कभी कमर जवाब दे गई, कभी गर्दन में दर्द निकल आया, कभी सर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी बुखार आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी खांसी लग गई, जुकाम। जो जवान है, जवान, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए बेहतरीन मौका है इबादत करने का। उस वक्त का इंतजार न कीजिए कि जब आप रुकू ही ना कर सके, सजदा ही ना कर सके, खड़े ही ना हो सके। जो बुजुर्ग हैं उनको भी चाहिए कि वो जो बाकी मानदा जिंदगी है उसमें मैक्सिमम यूटिलाइज करें, अपनी जिंदगी को यूटिलाइज करें। एक हमारे दोस्त थे हाज हुसैन, बहुत बूढ़े थे, यानी हमारे तो वालिद से भी कम से कम 20, 25, 30 साल बल्कि बड़े होंगे, दादा की उम्र के होंगे। तो मैं उनको देखता था, बड़े एक्टिव, छोटा सा कद था उनका। हमारे उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह उज़्मा शेख अली मिश्कीनी रहमतुल्लाह अलैह के पास वो खादिम थे, यानी खिदमत गुजार थे। खादिम से बड़ा नौकर नहीं है, खिदमत करते थे। तो मैं देखता था कि इतना बूढ़ा आदमी, मेरे दादा की उम्र का आदमी, ऐसा एक्टिव था कि हम गिब्ता करते ही रश करते थे कि क्या बंदा है ये। मैंने उनसे पूछा कि हाज हुसैन, आप शुमा बाज नशिस्त न शुदी, आप रिटायर नहीं हुए? तो उन्होंने फरमाया, ना मैं टायर्ड हुआ हूं नेकी करने से, ना रिटायर्ड हूंगा। टायर्ड हूंगा तो रिटायर्ड हूंगा ना, मैं टायर्ड ही नहीं हूं। मैं अल्लाह के एक्टिव हूं, अल्लाह के लिए काम कर रहा हूं। और वो माशाअल्लाह बड़ी लंबी उन्होंने उम्र पाई, 100 प्लस के वो गए माशाअल्लाह। और आप अपनी जिंदगी को यूटिलाइज करें, कोई ना कोई प्रोजेक्ट पकड़ लें, छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट पकड़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि हम अपनी जिंदगी को यूटिलाइज करें और वेस्ट न करें। ये आज का सबक यही समझ लें। और इंशाअल्लाह आपने संडे के दिन भी आना है। माशाअल्लाह संडे का दर्स शुरू हो चुका है, आप जरूर आइए। इस दफा हुकूक औलाद पर बेहतरीन दर्स होगा कि माँ बाप पर कौन कौन से हुकूक वाजिब हैं। आपकी मेहरबानी होगी। शब जुमा में भी आएँ, जुमा में भी तशरीफ लाएं। और जो इंशाअल्लाह ओकेजनल मजालिस होंगी, 26 नवंबर को मजलिस होगी बीबी पाक की शहादत की, उसमें भी आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ, उसमें आपने तशरीफ लानी है। कोई बहन है ब्रॉन्क्स से, उन्होंने इस मजलिस को स्पॉन्सर किया है। अल्लाह ताला उनको भी अजर दे, जज़ा दे। करंट इश्यूज के बाबत हम दोबारा यही कहेंगे कि अल्लाह ताला इस जंग को बंद करे, जंग का खात्मा करे। और पाराचनार में भी जो शियों पे जुल्म हो रहे हैं उनका भी खात्मा हो। अलमादी सेंटर ब्रुकलिन आपकी दुआओं से, आपके तामुन से चल रहा है। ये महीना ज़रा हमारे लिए संगीन था, हमने उधार लेना पड़ा। एक अहले सुन्नत भाई से हमने उधार लेकर, काफ़ी सारा उधार लेकर मॉर्गेज दिया है। आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ, पहले भी आपने बहुत तामुन फरमाया है, फिर भी $100 वाली जो मूवमेंट चलाई है उसमें तामुन करते रहे। अल्लाह करीम इंशाअल्लाह हमारी मंजिल करीब फरमाएगा। Respected Mu'mineen, in second sermon usually we invite ourselves and our brothers toward repentance. I pray to God, Allah accept our repentance and forgive our sins and our parents' sins and give us capability to do good deeds and to avoid from bad deeds. We pray to God that God help us and finalize this war and innocent killing of Palestinian people and innocent killings of Shias of Parachinar. Al-Mari Center Brooklyn, mashallah, having all full-fledged services, alhamdulillah, including Fajr prayer, including congregational prayers, majalis, mahafil, Sunday school, Quranic classes. I urge you all to send your children to Sunday school 2 to 4 and please come yourself in Dars Quran. May Allah bless you all, and I am very thankful to each and everyone who is giving us charity. Today 2 brothers from Uzbek community, Azmat and Anwar Jan, they promised they will give $100 each toward mortgage, and I request you all, Uzbek, non-Uzbek, Iranian, Persian, brothers and sisters, Pakistani, Indian, to give us $100 per family, inshallah. By that contribution, we will be able to pay our mortgage and bills.
अल्लाह ताला आप सबको जिंदा और सलामत रखे, आपके लिए खैर बरकत नाजिल फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, आपकी हाजतों को अल्लाह पूरा फरमाए। अल्लाह ताला जो मुझ मस्कीन पर भी मेहरबानी करते हैं। कल एक बिरादर मोमिन मेरे लिए शाम का खाना और सुबह का नाश्ता भी लाए थे, मैं बग़ैर नाम लिए उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उनके मरहूमीन को इसका सवाब पहुँचाए। और जो हाजी साहबान हमें जुमा के बाद भी सर्व करते हैं, अल्लाह ताला इनके मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमाए, और जितने भी इस वक्त मौजूद हैं अल्लाह आप सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुअज्जलीन अली इब्न अबी तालिब व अला सय्यदति निसाइल आलमीन फातिमा बिन्त मुहम्मद वल हसन वल हुसैन व अली इब्न हुसैन मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफिल हुज्जत अल क़ाइम अल महदी अल्लाहुम्मा अज्जिल लना फराजा व साहिल लना मखरजा व खुल नाज़ना